So, uh, in today's lecture, we will talk about the electricity. And before electricity, we will be discussing the electric charge, what electric charge is, right? So, and how is it measured in? So, the very first thing is electrical charge. Electrical charge. So, electrical charge is nothing but charge can be positive or negative. If we recall the concept of atom, so in an atom, there's a nucleus, right? And inside the nucleus, there are protons and neutrons, right? And whatever the particles that are present inside the nucleus that make the nucleus, they are called nucleons. What do we call them? Nucleons. Okay. Uh, the particles that surround the nucleus, they are called as shells, and the particles that around the that orbit the nucleus, okay, in the shells, they are called electrons. Okay, electrons surrounding the nucleus. Okay, right. अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं कि the the charge the charge is measured in coulombs. That means the SI unit of electric charge is coulomb. Okay, and after that, we should know that the same charges, ये हमारी previous information knowledge होती है, the same charges repel each other, and the opposite charges attract each other. And we should know that what is the meaning of the charge body? What charge body is? What charge body is? Okay. तो हमारे पास जो charge body होती है, that means so a charge body, that means a body has an excess of one type of charge. A body has excess of one type of charge.
That means uh, either electrons greater than protons or electrons lesser than protons. And the charge that is transferred or exchanged, okay, a charge that transfers from one body to another body is electron only, right? आपके इलेक्ट्रॉन के अलावा जो है ना, वो कोई और चार्ज नहीं है जो कि आपका ट्रांसफर होगा. Right? So a charge that transfer from body to another body is a electron only. Okay. तो हम अभी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स तक पहुंचेंगे. हमें इनिशियली तो यहाँ से स्टार्ट लेना है. एंड हाउ आर यू गोइंग टू मेक अ बॉडी चार्ज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्जन. आप क्या करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, if you rub one object over another object, so this rubbing will make the body charged body. Okay, जिसकी वजह से क्या होगा, there will be the imbalance of charges. Okay, so let me show you how this imbalance of charges takes place. Now you can see here how are we going to charge one body by rubbing. ठीक है. So for example, if I move this object and if I rub over here, right? So what are you observing here? What are you observing here? Right. So what are we observing here is that when we rub one object on Attractor is so yes, one type of charges remain on one object and another type of charges remain on the other object. And this is how, if I drag it away from this body, so they are going to get attracted. Okay. ठीक है. तो ये attraction क्यों हो रही है? This attraction is due to the imbalance of charge, right? The balloon has negatively charged body. Okay, has become a negatively charged body, and this piece of cloth has become the positive charge of body. That means you can see here the only negative charges move from one object to another object. Okay, so whenever we rub one object on another object, so one type of charges will be in excess amount on each of the objects. Okay, right? Okay, so let's take two balloons here, and if I rub in this way, now is it going to get attracted with this balloon? No. Okay. अच्छा, ये एक बात देखें कि if I am going to move to this right side, so what are you observing? How the negative charges are behaving? The negative
they are going back. So this is called repulsion, right? So the negative charges, they are moving away from the rod as the balloon moves closer to the rod. Okay? Okay? And this is why this balloon has stick with this rod because of the positive charges, the presence of the charges, positive charges. Okay, right? I hope this concept is cleared enough in how the rubbing makes the body a charged body. Okay, so a charged body can be made by rubbing. Okay, charged body can be made by using charged body can be made by using uh, rubbing or due to friction. Right? I hope this is now clear enough. Okay. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आफ्टर दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू that the particle that only transfers from one body to another body is the negative charge or the electron. Okay, ठीक है. अच्छा, what electric field is? I want to ask this question. जी, what electric field is? Let's unpack this question and then we will discuss how this electric field matters. So electric field, that is the region surrounding or a space that is surrounded by a charged particle. Okay, or we can say a electric field around a particle that is at rest. Okay, where another charged particle would experience a force. Okay, so let me uh, take this here. What electric field is, right? G. So an electric field is a region or a space, okay, surrounding a charged particle or a rest particle that is not moving, where another charged particle would experience a force due to the presence of the first charge or due to presence of the electric field as well. Okay, so that means कि आपके पास कोई एक चार्ज है, ठीक है, तो उस चार्ज के इर्द गिर्द जो स्पेस होती है, रीजन होता है, दैट स्पेस और रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो एक चार्ज रुका हुआ है, रेस्ट पर है. ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द कौन सी फील्ड है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट? सो चार्ज कैन बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव एज वेल. ठीक है, सो लेट्स टेक दिस कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. लेट मी टेक द कॉल. यार ये कॉल कर रहे हैं. Now, see this, the electric charge, sorry, electric field due to the positive and negative.
charges. Okay, ठीक है. So the direction matters a lot. When we have a rest charge that is positive, so the electric field lines go away from this positive charge, and नेगेटिव चार्ज की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो टुवर्ड्स नेगेटिव होती हैं. ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. सो yes, so electric field due to the positive charges, they they are radiated from away from the positive charge, right? ठीक है, तो ये याद रखिए कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जनरेट होती है दैट इज एन आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, एंड इट इज जनरेटेड बाय पॉजिटिव चार्ज. तो इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स टू कलेक्ट डस्ट पार्टिकल्स. ठीक है, आपके जो लाइक आपके जो प्रिंटर्स होते हैं, फोटोकॉपी मशीन्स होती हैं, ठीक है. सो देयर दिस दीज डिवाइसेस और apparatus वर्क ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कॉन्सेप्ट, राइट. ठीक है, तो आपके इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही आ रही होती है. while that inward electric field that is created by the negative charges, ये चीज़ यूज़ हो रही होती है आपके टेक्नोलॉजी लाइक कैथोड रे ट्यूब्स होती हैं. ठीक है, टू डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बीम्स. ठीक है, किसी स्पेसिफिक हमें टारगेट के ऊपर हिट करना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को. तो वी विल बी यूजिंग द इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्जेस. ओके, so I hope that this is much about the electric field and the positive electric field. Okay, तो आपके इवन जो प्रिंटर्स वगैरह एज आई हैव टोल्ड यू कि जो इंक ड्रॉपलेट्स होते हैं आर चार्ज्ड एंड देन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेपर यूजिंग द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सही. तो आपके फोटोकॉपियर मशीन के अंदर भी ऐसे ही होता है. द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑन द ड्रम that creates an outward electric field that attracts the toner particles. Okay, तो ये इस तरीके से this is how it works. ठीक है जी. और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क्स इन द मशीन्स ऑफ कैथोड रे ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स. So this could be the application of the electric field, ठीक है, of negative charges and positive charges, right? Now let's discuss about the conductors and insulators. ठीक है, conductors and insulators. ठीक है, तो let me write it here. तो कंडक्टर आपके क्या होते हैं बेटा? द कंडक्टर्स आर substances or material, right, which allow current, or we can say electricity, to flow, right, due to free इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और फ्री आयंस भी हो सकते हैं. क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ड्यू टू फ्री आयंस होंगे, और किसी सॉलिड सब्सटेंस कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो दैट इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, लेकिन जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं
तो the substances or material which that is going to be opposite of it, okay, which do not allow current, ठीक है, to flow, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसके अंदर इतने एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है, जो कि आपके एनर्जी को ट्रांसफर करवा सकें, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल सोर्स और द इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर की एग्जांपल से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एग्जांपल में ऑब्वियसली हमारी सारी की सारी वायर्स आ जाती हैं, राइट। तो आपके कॉपर आ सकता है, ठीक है, गोल्ड इज अ कंडक्टर, स्टील, यस इट्स अ अलॉय, सो इट इज आल्सो द कंडक्टर, ठीक है। तो गोल्ड, कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम, यस एल्यूमिनियम, हाउ कैन वी फॉरगेट इट, एटसेट्रा। इंसुलेटर्स के अंदर आप अच्छा, ये कंडक्टर के अंदर ग्रेफाइट भी आ सकता है, ओके, ग्रेफाइट, राइट, ग्रेफाइट। इंसुलेटर्स में आपके रबर आ सकता है, ठीक है, रबर है, वुड है, राइट, प्लास्टिक है, तो ये आपके बहुत सारी हो सकती हैं, एंड यू कैन आल्सो सर्च इट योरसेल्फ, ओके। सो वेल, आफ्टर डिस्कसिंग कंडक्टर एंड इंसुलेटर, हम एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना होता है, ठीक है, जिसके अंदर वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इंसुलेटर। सो आई थिंक यू शुड डू दिस योरसेल्फ, या आप लोग खुद से फाइंड करिएगा कि ऐसा एक्सपेरिमेंट हम कौन सा कर सकते हैं जिसमें हम डिफरेंशिएट कर सकें कंडक्टर या इंसुलेटर में, ठीक है। इट्स वेरी इजी, यू कैन मेक एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट एज वेल, ओके, ठीक है जी। ऑलराइट, let's talk about when charge moves from one body to sorry, when charge moves, तो होता क्या है in the conductor? So what happens when a charge flows or moves across a conductor? ठीक है, तो एक्चुअली होता ये है कि द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, द फ्लो ऑफ चार्जेस पर सेकेंड, और वी कैन से चार्जेस पास थ्रू वन पॉइंट in unit time is called current, हम उसको करंट कहते हैं। क्या मतलब है कि अगर एक चार्ज जो है, ठीक है, अगर वो एक चार्ज है जिसको हम क्यू से शो करते हैं, अगर वो चार्ज कितने टाइम में जा रहा है एक जगह से, एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, उनको कितना टाइम लगा, फॉर एग्जांपल बिटवीन ए टू बी, कितने चार्जेस यहाँ से गुजरे हैं बिटवीन ए टू बी, और कितने टाइम में गुजरे बेटा, राइट, कितने टाइम में गुजरे, दैट इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रिक करंट, ओके, सही। तो वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। सो यू मस्ट नो कि इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट अ फ्लो ऑफ द चार्जेस, ओके, पर यूनिट टाइम। तो एक तार में से कोई चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, कंडक्टर है उसमें से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो दैट्स गोइंग टू बी द करंट, ठीक है। एंड क्यू इज द चार्ज, क्यू इज अ सिंबल दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट चार्जेस, एंड टी इज अ टाइम, और आपका जो आई होता है वो क्या होता है बेटा, करंट होता है। अब इनके ऐसा यूनिट्स भी अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर लें
कि जो चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है आपका कूलम, राइट। ऐसा यूनिट हमारा कूलम होगा, उसका सिंबल कैपिटल सी होगा, और टाइम हमारा ऐसा यूनिट उसका सेकंड होगा, एंड द सिंबल इज स्मॉल एस, एंड द करंट इज एम्पेयर। ओके, उसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल ए होगा, राइट। तो बेटा एम्पेयर इज गोइंग टू बी व्हाट? एम्पेयर इज नथिंग बट अ कूलम पर सेकंड, ठीक है, कूलम पर सेकंड, और वी कैन से कैपिटल सी ओवर एस, राइट। आपने फॉर्मूला ना याद रखना होता है, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। और अगर हमें क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए जिसके अंदर हमें क्यू निकालना हो, तो वी कैन मेक क्यू एज अ सब्जेक्ट एंड वी विल बी यूजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू आई टी। ओके, ठीक है जी। तो ये एक हो गया कि करंट क्या होता है, और हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, कंडक्शन इन मेटल्स इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा हम ये देखते हैं कि एक्चुअली मेटल्स के अंदर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह हो रही होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन किस तरह होती है। हमने आ, हमने जो है ना वो एक हीट हीट ट्रांसफर, फ्लो ऑफ हीट पढ़ा है, ठीक है, मेटल से फ्लो ऑफ हीट कैसे ट्रांसफर हो रही होती है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसे होती है, ठीक है। ठीक है, so we are going to describe how electrical conduction happens in metals due to movement of free electrons. Okay, सही। तो yes, see here, मैं थोड़ा सा अगर ये बड़ा हो सकता है तो आई कैन मेक इट enlarge. Yes, it is now visible. Okay. So electrical conduction in metals occur due to the movement of free electrons. These electrons are loosely bound outer electrons that can readily move through metal lattice. ठीक है, जो आपके मेटल का जो एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स, द आउटर इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्री टू मूव, ठीक है, एक्टिंग एज अ चार्ज कैरियर, और वो क्या करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस तरह अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई एक सोर्स चाहिए होगी जो चार्ज को पुल करेगी, ठीक है, एसेंशियली अलाउइंग इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू द मेटल। तो अब हमें कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स चाहिए, या एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स चाहिए जो चार्ज को ड्राइव कर सके थ्रू द कंडक्टर। ओके, सो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोपेल्ड
in the specific direction, right? When the voltage is applied. ठीक है, तो जब आप एक कोई कंडक्टर लेते हो, उसको आप बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होता है कि आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपके जो चार्जेस होते हैं, दे दे जंप और दे मूव फ्रॉम दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, ठीक है, हम इसको ज़रा और मज़ीद डिटेल में देख लेते हैं कि ये पिक्चर को आप देखें ज़रा, ठीक है, सी दिस इमेज एंड नाउ वी कैन गेट द आइडिया कि हमारे पास क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक सर्किट है, इसके अंदर कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, उस कंडक्टर को हम एक बॉक्स कह देते हैं, ठीक है, दो, ये बॉक्स जो है वो एक आपके पास वो भी एक तार ही है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी, और यहाँ से फोर्स आपकी जा रही है और ये एनर्जी कैरी करते हुए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एंड फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग द एनर्जी, ये जो आपके वोल्टेज सोर्स है ना, वोल्टेज सोर्स, यहाँ से इनको एनर्जी मिल रही है। ओके, तो ये पुश हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पुश होते हुए, ठीक है, ये एनर्जी लेते हुए जा रहे हैं, दे आर एनर्जी कैरियर्स, राइट, एज वी हैव डिस्कस्ड हियर। ठीक है, आपके एनर्जी कैरियर्स हैं, एंड देन दिस इज हाउ दे पुश दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हम इसको क्या कह सकते हैं, लूजली बाउंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपके लूजली बाउंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, दे आर बीइंग पुश्ड एंड देन दे रीच बैक टू द सेल, टू द पॉजिटिव टर्मिनल, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ठीक है, so this is how the conduction, electrical conduction happens due to the movement of the free electrons, and the electrons act as a charge carrier। ठीक है, और इस तरीके से आपका एक फ्लो ऑफ चार्जेस का जो एक पूरा सिनेरियो है वो यहाँ पे फॉर्म होता है। ओके, आई होप द थिंग्स आर बीइंग क्लियर्ड, राइट। इस तरीके से हम लोग आगे देख रहे हैं। अच्छा, फिर आपको अभी एज आई हैव टोल्ड यू कि द करंट इज मेजर्ड इन एम्पेयर्स, ठीक है, और एम्पेयर को हम कूलम पर सेकंड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है। ठीक है, देखिए, जब हमारे पास जिस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है, तो एक कन्वेंशन बन गई थी, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स were not discovered, a convention was made। ठीक है, वो कन्वेंशन क्या थी कि तार में से कोई भी चीज फ्लो हो रही है तो वो हम उसको कह देते थे कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से जा रही है और वो नेगेटिव टर्मिनल तक आ रही है। ठीक है, राइट, तो उसको हमने नाम जो दे दिया था, वो क्या नाम दे दिया था, कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट इज नथिंग बट द करंट दैट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू अ नेगेटिव टर्मिनल। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या था, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट बनता है, ठीक है, दैट इज फ्रॉम फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है,